ओके, आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस फ्री आकाशिक रीडिंग सेशन में। ओके दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फ्री आकाशिक रीडिंग के सेशन में। और मैं सबको बता दूं कि एवरी मंडे एट 4 PM हम क्या करते हैं, हम आकाशिक रीडिंग लेते हैं। जो हमारा सेशन होता है फ्री आकाशिक रीडिंग का, इसमें हम क्या करते हैं, हम हर व्यक्ति का एक प्रश्न, लाइक वी आर टेकिंग वन क्वेश्चन पर पर्सन and we connect to Akashic record, we connect to their Akashic guide, and their Akashic guide give answers through me to them. Okay, and what is the procedure to join for this free Akashic reading session is, you need to fill up a Google form. You have to write down your question, you have to describe whatever background you have. If you want to give some background, any description for your current situation, for your current problem or a question, you have to write down your description in the description box. You have to give your details, and what we do, we allow all the participants who have registered to come over here. We will give answers to you. You will get a chance to talk to me, to talk to your Akashic guide through me when the session is happening. For that, you must present in this session. आप सबको सेशन में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सो ये प्रोसीजर है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ स्पेशल फ्री आकाशिक रीडिंग ग्रुप. If you are not yet part of the WhatsApp group, you can join. For joining WhatsApp group, what you need to do is that you just write your mobile number here in this chat box in this Zoom meeting, and we will save your number and add you in our WhatsApp group. Okay, and my dear friends, many members right now are here today new. They are totally new about this Akashic reading session. So let me introduce first. My dear friends, I am Padma Priya Sarodaya. Many people know me as Priya Jain Sarodaya. I am an awakening activator. I'm a sound alchemist, and I am an international trainer cum facilitator for Akashic Guide, Akashic Record. I teach Akashic Record. Apart from that, I'm Institute Channeler, channeling different light symbols and light codes. And I'm the, till now, I'm the, only one multi-entity channeler. So I can channel any dimension being, any god or goddesses. So any higher being I can channel from any dimension. And not only this, I'm a certified life coach and I'm a certified trainer also. So my dear friends, this is a short introduction from me. I'm the founder of Manasa International, under which we take different courses, spiritual courses, and I'm the founder. Me and my husband Vishal Sarodaya, we are the founders of Shakti Beach Mandala Organization, which is our NGO. And under this organization, we used to take free workshops, free sessions, and this is one of the part of our own organization's free session. Okay, so from the depth of my heart, I welcome all of you. And if there is any language problem, agar मैं switch करती हूँ तो, so if you don't understand any sentence or any word, please let me know in the chat box and I will translate it. I hope everyone is comfortable with that. So my dear friends, stay connected. And this session contains two parts. So usually it happens for 1 hour. So first half is that for question answer session, and second half is that for quantum Akashic healing session. Okay, so in the second part we do quantum Akashic healing, which is a group healing. Okay,
So everyone is ready. So new people used to call me, I think I have to take this call because they want to join the course. Just give me a second. Okay, let me mute my mobile. Okay, everyone is ready? Yes. If yes, type in the chat box. Yes, 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 yes. Yes. क्या सब तैयार है? ओ वाओ, किसी ने शॉर्ट में एस लिखा. यस. व्हाट इंटेलिजेंट पर्सन. एकदम जल्दी बस. वंडरफुल. यस यस. गुड गुड. तो चलिए क्विक में हम कनेक्ट करते हैं. आंखें बंद करके फटाफट. आंखें बंद कीजिए. एक लंबी गहरी सांस लीजिए. धीरे से छोड़िए. फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए. धीरे से छोड़िए. पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए. फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से उसे छोड़िए और बस रिलैक्स होके बैठे. अपने शरीर के सारे तान तनाव को जाने दीजिए. Just relax with your body. Allow your mind and body to relax completely. अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े दोस्तों. इंटेंशन डालिए कि मैं अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ रही हूँ. मैं अब इनवाइट करती हूँ लॉर्ड्स ऑफ आकाशा को, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स और गाइड्स को. मैं इनवाइट करती हूँ श्री माता बाबा जी को, लाहिड़ी महाशय को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी गुरु जी को, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को. मैं इनवाइट करती हूँ माँ आदि पराशक्ति को, माँ शक्ति रूपिणी को और गॉडेस साइकिल को. मैं इनवाइट करती हूँ श्यामला मास्टर्स को. सबको कोटि कोटि वंदन करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ. बस लास्ट कुछ सेकंड उनकी ऊर्जा के साथ. ओके, अभी आप आके खोल सकते हैं. उनको कोटि कोटि वंदन करके सबको. अब हम शुरुआत करेंगे आज के इस आकाशिक रीडिंग सेशन की.
तो देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। लेट मी ओपन इट। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी नाम लूंगी और आपको जो है हैंड रेस करना है कि आप प्रेजेंट हो करके, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, एवरीवन प्लीज गेट रेडी। रीना भाटिया जी, आप प्रेजेंट हैं? रीना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रीना भाटिया, नाम रीना जी तो एक है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, यस मैम, आई एम प्रेजेंट। ओके, रीना भाटिया लुधियाना से, राइट? यस मैम। आपका क्वेश्चन है, आई वांट टू गो स्पिरिचुअली, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? यस मैम। क्या करती है आप? मैम मैं PSSM से जुड़ी हुई हूँ फॉर द लास्ट 1.5 ईयर। मेडिटेशन कर रही हूँ, वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ। और मैम जितना जितना विजडम टॉक लिया है, जितना विजडम टॉक समझा है आज तक, उसको मैं इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक करती भी हूँ, सिर्फ सुनती नहीं हूँ, करती भी हूँ। सबसे ज्यादा मुझे ग्रेटिट्यूड का पता चला है कि कैसे यूनिवर्स पे हमने ग्रेटिट्यूड करना है, वो तो पता आपने चला। आज डांस किया? नहीं मैम, मैंने डांस नहीं किया। क्यों नहीं किया यार? ग्रेटिट्यूड तो ऐसे थोड़ी होता है सिर्फ बोल के लिखे। हाँ मैम, डांस नहीं किया मैंने। ये तो ग्रेटिट्यूड के साथ नाइंसाफी किया आपने। नेक्स्ट टाइम मैम, पक्का, नेक्स्ट टाइम पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। तो मुझे ये बताइए आप कि आपको जो क्वेश्चन है कि एम आई गोइंग इन राइट डायरेक्शन, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैम मेरी अपनी जजमेंट है कि जितना मैं दे रही हूँ शायद उतना मैं गेन नहीं कर रही हूँ, मतलब मेडिटेशन में। दे रही हूँ मतलब क्या दे रहे हो आप? जितना मैं अपना टाइम दे रही हूँ, जितने मैं अपने एफर्ट्स दे रही हूँ, जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ। जितना टाइम दे रही हो उससे क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है? मैम मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ, जितने मैं सिंसियरली एफर्ट्स डाल रही हूँ, शायद मैं अपनी मेडिटेशन उस लेवल तक नहीं लेके जा पाई हूँ, या उतना कंसंट्रेशन मेरा नहीं बन पा रहा है अभी। अच्छा, मतलब आप जो है, आपकी जो साधना है, मतलब आपका जो अभ्यास है, साधना से ज्यादा हाँ मतलब कि अभ्यास आपका हाँ जो है, वो आपका अभ्यास ज्यादा हो रहा है और आपको लग रहा है कि साधना कम हो रही है। हाँ मैम, हाँ। और दूसरा मैं ये भी है कि क्या मैं मतलब मैं इसमें ग्रो करना चाहती हूँ, स्पिरिचुअली मैं ज्यादा लंबी जर्नी करना चाहती हूँ। तो तो एग्जैक्टली आपको डिफाइन करना होगा कि आपको क्या चाहिए। मुझे मैम आपको अपना, समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो कमी है या गड़बड़ हो रही है, पर क्या? हाँ मैम, मैं कंसंट्रेशन मेरी कभी कभी तो बहुत अच्छी कंसंट्रेशन लगती है, मैं बहुत सेटिस्फाइंग मेडिटेशन होती है। और कभी कभी इतनी देर बैठने के बाद भी बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और और मैम जैसे कि मेरा मेरा विजन है कि मैं बहुत लंबा जाना चाहती हूँ, आई वांट टू गो डीपर एंड डीपर, और डीपर नॉलेज लेना चाहती हूँ उसको। जैसे जितना मैं सुनती हूँ, जैसे अब आपने बताया, आपने अपनी सारी बताई कि योर टैलेंट्स आपने सारा बताया, तो मैम मुझे लगता है कि जैसे आई जस्ट नो नथिंग अबाउट एनीथिंग, तो मैं इसमें और एक जैसे। मिनट होल्ड कीजिए। देखिए, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहली बात तो बद्री सर ने कहा है नो कंप्लेन, नो जजमेंट, है ना? हाँ। उन्होंने 5 बात बताई है, नो एक्सक्यूज, राइट? हम्म।
नो क्रिटिसिज्म। हाँ अब मुझे बताइए कि आप जजमेंट करके, ये आपका सेल्फ जजमेंट है आपके मेडिटेशन के लिए, हाँ बेसिकली आपके अभ्यास पे आप सेटिस्फाइड है? किताबें पढ़ना या फिर सेशंस अटेंड करना या सीखना, इसमें आपको लगता है कोई कमी नहीं है, बट यू आर जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी यू डू। हाँ जी हाँ जी देखिए, एक आत्मा को ना, सच बताऊं मैं आपको, हाँ जी किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, सारा ज्ञान आप ही के अंदर है। हाँ जी मैम, ये भी चीज समझ में आती है, ये भी ठीक बहुत है, बार और सुना है। दूसरी बात जो है, ये सेल्फ जजमेंट करना, ये सबसे पहले तो दिस इज रॉन्ग, यू आर लीकिंग योर एनर्जी। आपने होल बना दिए हैं, आपने वो छेद गिरा दिए हैं, जिससे एनर्जी आप इकट्ठा कर रही है, वो लीक हो रही है। दूसरी बात, सबको ये समझना है कि ध्यान ऐसी चीज है जिसमें कोई जजमेंट नहीं होता। बेसिकली ध्यान बस बैठना होता है, उसमें आपको कुछ नहीं है। मैंने कितने लोगों को ये सुना है, मैडम ध्यान ही नहीं हो पा रहा, मैडम 2 मिनट हार्डली आखिर में लग जाता है, नहीं तो नहीं लग जाता है, 100 विचार चलते हैं, 1000 विचार चलते हैं, हलचल होती है मन में। अरे वही तो ध्यान हो रहा है ना। पर आपको ये समझ में आ रहा है कि ध्यान नहीं हो रहा है, यही ध्यान हो रहा है। क्योंकि आपको ध्यान हो रहा है कि आपको कुछ, आप ट्रांस में नहीं जा रहे हो। क्या फर्क गिरता है? पर आपको सोते हो ना, हम सब सोते हैं ना, क्या ट्रांस की जरूरत है? देखिए, प्रोसेस तो हमारी आत्मा पे हो ही रही है। जिस क्षण हम आंख बंद करके ये इंटेंशन डाल के बैठते हैं कि मुझे ध्यान करना है, उसी क्षण वो ऊर्जा, वो जो दिव्य शक्ति हमारे शरीर में एंटर कर जाती है और वो हमारे शरीर में दौड़ना लग जाती है। भले ही हमें वो, मतलब वो स्थिति जो, देखिए आप स्थिति के लिए तरस रही है, पर स्थिति जो होती है वो कभी आती है कभी नहीं आती। मुझे बताइए, आप खुद एक गृहिणी है, आप खुद खाना बनाती होगी, आप हर वक्त जब भिंडी की सब्जी या बैंगन की सब्जी बनाती, तो क्या सच में एक ही जैसा टेस्ट बनता है क्या? बताइए मुझे। नहीं मैम नहीं। ऐसे 1% भी गलत टेस्ट नहीं बनना चाहिए, उतना 100% वैसा ही टेस्ट बनना चाहिए। हाँ जी मैम, बनेगा? नो मैम नो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैंगन की सब्जी मसाले वाली, वाह भरे हुए बैंगन, क्या बढ़िया मम्मा, मजा आ गया आज तो। और कभी कभी वही बैंगन की सब्जी, क्या है ये, ऐसे कैसे बनाई? फिर हम कह देते हैं, अरे बेटा वो आज ऐसा हो गया। एंड दैट्स ऑल इज अबाउट मेडिटेशन। कभी तीखा, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी फीका, कभी बहुत ही यम्मी, कभी बहुत ही टेस्टी, एंड दैट्स हाउ जर्नी इज। कोई भी चीज एक ही जैसे फ्लो नहीं होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रोलर कोस्टर, कभी कैसे, कभी खड्डे, कभी एकदम से जंप, डायरेक्ट एस्ट्रल ट्रैवल, तो कभी कुछ भी नहीं। अरे फिर हम कहते अभी तो मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, नहीं नहीं अभी तक तो मुझे इतने सारे अनुभव होते थे, अचानक आप अनुभव बंद हो गए, हाँ मेरी तो एनर्जी एकदम डाउन हो गई, मेरे वाइब्रेशन डाउन हो गए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यूनिवर्स का नियम जो है वो हमें समझना है, ये आत्मा का नियम है कि कोई भी आत्मा कभी भी पीछे नहीं जाती, नहीं जा सकती। आप कल तक जहां तक पहुंचे थे, आप उसके आगे ही जा रहे हो, आप कभी नीचे उतरते नहीं हो। आप जज मत कीजिए सिर्फ अपने अनुभव से, क्योंकि आत्मा प्रगति ही कर रही है। हमेशा पत्री सर ने भी कहा है कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। No matter what you are judging with your conscious mind, this is good experience, this is bad experience, but for soul, all experience. There is no good, there is no bad. तो प्लीज इससे आप हटेगी तो आप कहीं और जाएगी, कहीं और पहुंचेगी। इस स्थिति से, इस विचारों से, ये बिलीव से उठिए, जज मत कीजिए। और याद रखिए, पत्री सर ने ये भी कहा था, हमें पंडित नहीं बनना है बाबा, हाँ हमें जी पंडित नहीं बनना है। एक काम कीजिए, आप त्याग दीजिए कुछ दिन पढ़ना, सेशंस करना, सीरियसली। आप सबको मैं मेरा एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था और उसको मैंने कहा था, ओए मैंने ना लास्ट 1 महीना मेडिटेशन ही नहीं किया, मुझे ऊपर से मैसेज आया। उसका रिएक्शन क्या, प्रिया मेडिटेशन नहीं किया? अरे बाप रे, इट वाज लाइक उसके जमीन की पैर की, मतलब नो जमीन खिसक के पैर के नीचे की। इम्पॉसिबल आए हाय, तुम तो ट्रेनर हो, तुम तो ये हो। मुझे बताइए, मेरे जैसे व्यक्ति को ये मैसेज आता है, यू आर नॉट गोइंग टू डू अनुपान सकीने,
और लिटरली मुझे 1 महीना वैसे रखा, और ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस आज मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले उसका आंसर मिला कि भाई जो एनर्जी का जो मेरे ऊपर काम चल रहा है वो डिवाइन फेमिनाइन का काम चल रहा है। डिवाइन मेस्कुलाइन जो हमारी साधना होती है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है, एक मस्कुलाइन पैटर्न होता है, एक फेमिनाइन पैटर्न होता है। सो फेमिनाइन जो साधना होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, फेमिनिस्टिक जो साधना होती है वो, ओके। और जो पुरुष वाली जो होती है जिसमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होती है, या फिर वो पैटर्न में जाती है, वो एक अलग होती है। मुझे पूरा कट ऑफ कर दिया, और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, लाइव चल रहा है। ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर जब यहाँ पे आए थे उन्होंने मुझे बिठाया था, मैं पत्रिस सर से कनेक्ट किया था उन्होंने, और पत्रिस सर ने लास्ट टाइम मुझे ये मैसेज दिया था, मुझे भूल जाओ। वो बात अलग है कि मैं उनको बुलाती हूँ, मुझे भूल जाओ। मेरा गुरु मंत्र की साधना तुड़वाई, मेरे आनापान सती की साधना तोड़ दी, अटैचमेंट हो चुका था मुझे आनापान सती ध्यान से। हर किसी का अपने स्तर पर एक अलग चीज होती है। आप हम हमारे दिमाग के ऊपर की बातें ये हम सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, आपकी अगली ग्रोथ के लिए क्या सही है वो जानते हैं, आपका हायर सेल्फ जानता है, आपके गुरु जानते हैं। समझ गए आप? ये तो चीज मैम समझना बहुत जरूरी है, सरेंडर रहना है। और मैं समर्पित हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, लिटरली 6 दिन में मेरी स्किन बदल गई, इतनी सुंदर हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। अब मुझे बताइए बिना साधना के। मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि भी हम ये साधना में हम किस लेवल पे पहुंच गए, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमें क्या करना है? जैसे हम तो एक रूटीन मेडिटेशन कर रहे हैं। बाकी के सारे वेट कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन पर पर्सन। सॉरी, मैंने काफी अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया, और वो एक्सप्लेन इसलिए किया ज्यादा देर तक क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है जो सबको समझनी बहुत जरूरी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। हाँ अभिजीत उल्लेवन सर, आपका क्वेश्चन मैं नहीं लूंगी, पर आपकी फ्री आकाशिक रीडिंग कल 11 बजे है, ओके। तो आपको व्हाट्सएप पे जूम लिंक भेज दी जाएगी, आपको फ्री रीडिंग मिलने वाली थी ना, तो इसलिए आज आपका हम क्वेश्चन नहीं लेंगे। ओके ओके सर, ओके बोलिए, लिख के भेजिए, चलिए। ओके गुड ग्रेट, याद रखिएगा 11 बजे। ओके, नेक्स्ट जो है हम जाते हैं चंचल पटेल। क्वेश्चन ओके, रांची से क्या है? चंचल पटेल है यहाँ पे। चंचल पटेल हाँ है, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए चंचल जी आपका। हेलो मैम, आत्मवंदन। आप दिख नहीं रही मुझे, वेट कीजिए एक मिनट। कहाँ है? मैं ये रही। ओके हाँ हाँ, हेलो वेलकम। तो आपका क्वेश्चन जो है वो पढ़ूं मैं अभी? हाँ हाँ, काफी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है आपके यहाँ से, थोड़ा चेक कीजिए। ओके, आपका हेल्थ रिलेटेड कुछ है कि शुगर, ओवरीज का, घुटनों में दर्द? ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है बताइए मुझे। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, मैं 1 साल से आनापानसती जेटीटीपी 16 से कर रही हूँ, और लगातार कर रही हूँ मैं। 2 आवर्स तो कंपलसरी ही है, और अपने आप को हमेशा हर सिचुएशन में एक्सेप्टेशन वाली रखती हूँ कि नहीं, जो है जैसा है स्वीकार भाव रखना ही है। कोई भी कि मैम ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो बेसिकली आपका आध्यात्मिक सफर इसी क्वेश्चन से शुरू होता है चंचल जी, आपको ये ढूंढना है। देखिए एक चीज समझिए, मैं आप सबको दिल से बहुत प्यार भेजती हूँ। मैं आप एक मिनट में आपको थोड़ा म्यूट करती हूँ ताकि वो बैकग्राउंड नॉइस ना है। दिल से मैं सबको लव भेजती हूँ, जो लोग मतलब कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो कुछ भी हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, जो भी साधना आप कर रहे हो, आई टोटली एग्री, आई टोटली रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट, सब कुछ मैं करती हूँ। पर दोस्तों मैं मेरे अनुभव से इतना बता सकती हूँ कि कई बार क्या है ना, हमें कुछ और चाहिए होता है, हम शायद किसी और चीज के लिए बने होते हैं, हमारा रास्ता थोड़ा सा हटके होता है ना। तो ये जो आपके इशू है जितने भी लेडीज के, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड ही इश्यूज है।
ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के रिलेटेड इश्यूज। तो इतना मैं आपको जरूर बता दूंगी कि आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज पे काम करना। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, ये प्रूवन है कि जिस मोमेंट पे हम डिवाइन फेमिनाइन पे काम करेंगे उस मोमेंट से जो है आप ये सारी चीजों से छूटना शुरू हो जाएगी। यहीं से तो आपका सही सफर शुरू हो रहा है। ये आए ही ये इंडिकेटर्स है, इनको इंडिकेटर की तरह ध्यान दीजिए कि बेसिकली आप रास्ते से जा रहे थे, पर ताकि आप आपके जो होता है ना मेरा पाथ जो होता है एक कि भाई मिशन मेरा पाथ स्पिरिचुअल पाथ, तो वो आपको इंडिकेट कर रहे कि भाई राइट लीजिए सीधा नहीं जाना है लेफ्ट नहीं जाना है। वो होता है ना वो एरोज होते हैं, ग्रीन एरोज होते हैं लाइट वाले, उस तरह ये दिखा रहे हैं आपको। बस वो जो दिखा रहे हैं उसके पीछे पीछे जाइए, टेक इट मतलब है ना स्पोर्टली लीजिए, उस पावर के साथ इस चीज को लीजिए। उनको धन्यवाद दीजिए कि वो आपको सही राह दिखा रहे हैं। बहुत जल्दी ये सारी चीजों से आप बाहर निकल के आएंगे, बट यू हैव टू फॉलो योर आर्ट। ओके ओके, थैंक यू चंचल जी। नेक्स्ट संजीव भाटिया, लुधियाना है क्या संजीव जी? आई थिंक नहीं है संजीव भाटिया। ओके मैं दूसरा नाम लेती हूँ। वाणीश्री, वाणीश्री हैदराबाद से, वाणीश्री है, वाणीश्री। ओके नेक्स्ट हम जाएंगे पठानकोट। ये क्या है? श्वेता खजूरिया है क्या? पठानकोट हाँ है जी। आपका एग्जैक्टली क्या है प्रोनाउंसिएशन नाम का? श्वेता, श्वेता। श्वेता है। ओके जी तो जी आपका जी। क्वेश्चन जो है आप कहाँ से है? पठानकोट। पठानकोट पंजाब से जी। मेरी आवाज आ रही है? आपको ही क्वेश्चन पूछना है, आपने यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है आपका क्वेश्चन। अबाउट माय स्पिरिचुअल जर्नी व्हाट? एक क्वेश्चन। मेरा स्पिरिचुअल जर्नी में आने का कुछ एम है, वो ही मुझे पता करना है। स्पिरिचुअल जर्नी में आने का कुछ एम है। अब जैसे देखिए जैसे ये मुझे कुछ इसमें भी कंप्लीट करना तो था। कितने फैसेट्स है बताइए, वेरिएशन है। इसलिए तो मैं कहती हूँ भाई क्लियर क्वेश्चन पूछा करो यार, क्योंकि बाकी के लोगों को भी तो क्वेश्चन पूछने हैं। अब जी देखिए आप पर्सनल लेवल पे पूछ रही हैं या सेवा भाव से पूछ रही है, दो अलग चीजें ही है। नहीं, कुछ भी है, मुझे है कि कुछ भी मुझे नहीं हो यहाँ आने सकता का है, कुछ। एक ही कुछ हो सकता है। नहीं, कुछ सेवा भाव है या कुछ कोई एम है लाइफ का जो मुझे पूरा करना है, ये मुझे बार बार फीलिंग आती है। मिशन। हाँ मिशन, यस। तो पता कर लीजिए। चलो देखते हैं, आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, आंख बंद कर लीजिए। अभी लाइव सेशन में काफी ऊर्जा बह रही है, तब तक मैं Yes. दूसरे का क्वेश्चन लेती हूँ और देखिए कि क्या आता है, बताइएगा सबको। ठीक है आपको अनम्यूट ही रखती हूँ मैं। ठीक है चलिए हम तब तक आगे बढ़ते हैं। हंसाबेन पटेल कोरबा से, ये है हंसाबेन जी? आई है क्या? हैंड रेज कीजिए अगर आप आई हैं तो। मेरे हिसाब से नहीं है, मुझे हैंड रेज जितने लोगों ने किया उसमें से दिख नहीं रही। हंसाबेन पटेल नहीं है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। दीप्ति पटेल रायपुर से, दीप्ति पटेल जी है क्या? दीप्ति पटेल नहीं है। कितने सारे लोगों ने रजिस्टर किया है। लक्ष्मी, लक्ष्मी आई है? लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी नो। ओके फिर बाद में स्वाति, स्वाति आर यू देयर? यस अनम्यूट योरसेल्फ। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आपको अनम्यूट करने का। स्वाति हैंड रेज है। स्वाति अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो
हेलो, हाँ मैं स्वाति बोल रही हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा एक मिनट, पता नहीं मेरा स्पीकर थोड़ा ठीक में काम कर रहा है। ओके, आपका क्वेश्चन पढ़ूं मैं अभी? हाँ प्लीज करिए। क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट, नहीं, हाउ कैन आई ओपन माई सेल्फ टू एनर्जी ऑफ लव एंड हैव हेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स? ओके, सो डू यू वांट आंसर फॉर दिस? देखिए, इसमें भी आपने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी और शैल आई गो विद इंग्लिश? हिंदी चलता है मुझे, हाँ, हिंदी में समझती हूँ। हिंदी में चलेगा? ओके, तो देखिए, दो में से एक क्वेश्चन आपको चूज करना होगा, मैं आंसर दूंगी। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई ओपन टू लव एनर्जी? हाँ तो उसका तो सिंपल आंसर है, ओपन योर हार्ट चक्र। अब आप बोलेगी मैडम वो तो मुझे भी पता है, पर कैसे? हाँ ऐसे। तो कैसे का आंसर है इनर वर्क करके। आपको इनर वर्क करना होता है, और वो इनर वर्क होता है। इनर वर्क, इनर जर्नी और इनर वर्क एक होता है, बट वो सिर्फ मेडिटेशन में बैठ के नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकली बैठना पड़ता है, प्रैक्टिकली लिखना पड़ता है एवरी डे। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ये ऐसी मैंने 300 पेजेस की बुक, दिस इज व्हाट इज माय मेडिटेशन सिंस लास्ट 1.5 ईयर, ऐसी मोटी मोटी बुक मैंने 4 कंप्लीट कर लिए, लिखी है लिटरली 300 से 300 पेजेस। सवेरे उठती हूँ और लिखती हूँ। So congratulations if you are asking this question. This question is a symbol and it's a symptom of enlightenment syndrome. थैंक यू। भाई ये enlightenment वाला question है कि how can I open my heart? How can I be receptive to love energy? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बेसिकली। ये इतने छोटे स्तर पे नहीं आता है ऐसा प्रश्न, तो जो लोग एनलाइटनमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं वो लोग ही इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके लिए उतने वो स्तर के आपको एफर्ट्स भी लेने होते हैं खुद पे, खुद। थैंक यू मैम। और आई थिंक मे बी एट द एंड जो मैं सरप्राइज सबको देने वाली हूँ, या फिर जो मैं सबको बताने वाली हूँ, शायद वो चीज आपको हेल्प कर सके। ओके, सो इनर वर्क याद रखिएगा। अब इनर वर्क में बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी, लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स। You have to be aware with your emotion, you have to be aware with your feelings, you have to be aware with your words, you have to be aware of your thoughts, you have to be aware of your beliefs। मैं आपको बताती हूँ, और एक चीज बताती हूँ चलो सबको, क्योंकि ताकि सबको ही पता चले कि ये क्या चीज होती है, ये कैसे होता है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ एक, चलो एक अच्छा वाला एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। हाँ चलो, ये देखिए, ये बुक दिख रही है आपको? ठीक है, मुझे ब्लर निकालना होगा। हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है ये बुक आपको सबको? अब देखिए, इसमें सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शंस है। ऐसे मैं जब मैंने ये शुरू किया था, अभी भी मैं ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस, क्योंकि मेरा काम है सबको बताना। देखिए, मैं डेट डालती हूँ और पहले तो एक गुड थॉट यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, फिर बाद में ये सेक्शन जो है ये मेरा वर्क सेक्शन है कि भाई मुझे क्या क्या काम करने हैं आज, क्या नहीं। फिर ये फैमिली वाला सेक्शन है, फैमिली के लिए क्या क्या किया, या मुझे आज क्या क्या करना है मेरी फैमिली के लिए। फिर बाद में ये है सिर्फ और सिर्फ ये सेल्फ केयर का सेक्शन है, सिर्फ सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाला, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये जो सेक्शन है ना, एक लाइन में ये लिखना है कि आज का दिन मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ, और बेहतर, ठीक है। तो ये लाइन, एक लाइन में हमें यहाँ पे लिखना है। फिर बाद में ये जो सेक्शन है ना, तो यहाँ पे मैं 5 पॉइंट लिखती हूँ हर दिन। आई एम ग्रेटफुल फॉर 5 पॉइंट्स, ये हो गया। फिर बाद में ये जो है ना हाईलाइट, कि भाई आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या यूनिक हुआ, आज क्या अनोखा हुआ। फिर बाद में ये जो है ना, यहाँ पे ये इतना पूरा सेक्शन जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ आज कौन से विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे,
आज कौन सी फीलिंग मेरे दिमाग मेरे अंदर चल रही थी, कौन से इमोशन ज्यादा उभर के आए हैं, है ना, और मेरा माइंड सेट आज का क्या था, माइंड सेट, ये जो सेक्शन। और ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक वाले, तो ये जो बेसिकली है ये रेटिंग है आउट ऑफ 5। अब ये आउट ऑफ 5 की 3 रेटिंग है। 3 रेटिंग में क्या क्या है ये कि मैं वर्क, अच्छा मैंने वर्क कैसा किया, तो ये देखिए आज मैंने ठीक ठीक वर्क किया तो मैंने 2 ही मार्क दिए 5 में से 2। फिर बाद में ये जो है फैमिली का, तो फैमिली के लिए कितना किया, और ये पर्सनल केयर किया कि नहीं किया, पर्सनल केयर नहीं, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा खुद को ध्यान दिया तो मैंने ये 4 पॉइंट्स दिए हैं आई थिंक खुद को। तो मतलब आपको मैं, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ सकिए कि ये इनर वर्क एक शॉर्ट में, मतलब वैसे ये दिस इज जस्ट टिप, एक छोटा सा डॉट है ये, है ना। फिर बाद में ये देखिए, ये है मूड ट्रैकर मेरा, पूरे महीने का मेरी कैसे चल रही थी, ऊपर नीचे नीचे, अरे बाप रे यहाँ पे ज्यादा ही, उस दिन मैं काफी लो फील कर रही थी फिर बाद में यहाँ पे आई, फिर बाद में पीक पे आई। ओके, तो बेसिकली दोस्तों इनर वर्क यस इज इम्पोर्टेंट। आई होप मैंने एक शॉर्ट में बता दिया। थैंक यू वेरी मच स्वाति जी। स्वाति जी हैं आप यहाँ पे? हाँ मैं हूँ यहाँ पर। थैंक यू मैम, दिस वाज वेरी हेल्पफुल। Yeah, it looks like, not so important, but this is the ultimate actually. हाँ इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन पहले बताइएगा दूसरी सब चीजें शायद फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। Yeah, thank you so much. Okay, next is स्वाति ज्योति आनंद। ज्योति आनंद जी कहाँ से हैं पता नहीं। ज्योति आनंद आप हैं यहाँ पे? नहीं, ज्योति आनंद जी नहीं है। ओके, फिर बाद में वेट, चलिए अब हम एक काम करते हैं, कितना टाइम हो रहा है 4:46। ज्योति आनंद जी है ना? हाँ ज्योति आनंद अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। ओके, आपका प्रश्न पूछो। हाँ जी हाँ जी। Why I am suffering from all these medical issues, especially disturbed sleep, suffering from anxiety without any reason? यस। ताली आपके लिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने जो आगे का सेंटेंस लिखा है उसी में सारे आंसर्स छुपे हैं। The having anxiety without any no reason. Wow, you are perfectly going ज्योति जी। आपकी सोल तो बहुत ही मजे कर रही है। इसका मतलब आपको पता है इसको कहते हैं एसेंशियल सिम्टम। ये है एसेंशियल सिम्टम, ये एसेंशन के सिम्टम्स हैं आपके, जो आपको डॉक्टर थोड़ी ना बताएगा कि ज्योति जी आप तो एसेंड हो रही है, इस वजह से आपको बड़ी एंजाइटी होगी अगले कुछ महीने, तो क्या आपको हो रहा है संभल मुझे? के रहना है, खुद का कौन ध्यान से देना सिम्टम बोल है। रहे हैं मैम? हाँ जी, कौन से सिम्टम बोल रहे हैं? एसेंशियल सिम्टम। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? एसेंशन आपको नहीं पता? नहीं नहीं। अरे बाप रे, रुकिए, मुझे ना हिंदी शब्द ही नहीं पता एसेंशन का। आज पता चला मुझे कि एसेंशन का हिंदी शब्द मुझे ढूंढना चाहिए। न्यू एनर्जी सुनी आपने? पढ़? न्यू एनर्जी? नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है ये आपके। आप क्या करती है? आप कौन सी साधना करती है? आप कहाँ से बताइए जरा थोड़ा। मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, किसी ने बताया आप आपको। मेडिटेशन करती है क्या, पहले ये बताइए। नहीं करते। आप नहीं करते? नहीं। देखिए वैसे हिंदी में तो इसको उठान कहते हैं, अधिरोहण है उठान। तो बेसिकली क्या है कि देखिए ज्योति जी, कि भले ही आप ध्यान करो या ना, वैसे वैसे बेसिकली ये ध्यान जो लोग करते हैं उनमें एक पर्टिकुलर स्टेज पे आता है। पर क्या है ना, अभी आप जो है ना यहाँ पे धरती पर जिंदगी जी रही है, ओके। जी। और धरती पर का जो इस वक्त का समय है, यहाँ पे जो है ये न्यू एनर्जी ज्यादा अभी धरती पर उतर चुकी है। धरती का भी एसेंशन हो रहा है। एसेंशन मतलब क्या कहते हैं, अभी
एकदम सिंपल भाषा में कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और पुण्य ज्यादा हम कलेक्ट करेंगे तो हम फिर मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचेंगे, है ना? जी। ये तो सुना होगा आपको, ये बेसिक हाँ जी, समझता हाँ है जी, आपको। हाँ जी। तो बेसिकली क्या है, एसेंशियल वो होता है कि आपको मरने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, है ना? जी, आप जो है वो उस स्वर्ग पे, धरती जो है वो 5वें स्वर्ग पे, 6ठे स्वर्ग पे जो है अपने आप जा रही है, डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ सिंपल भाषा में, ये काफी टेक्निकल है एक्चुअली, जी, ठीक है? तो धरती जो है ये डायमेंशन शिफ्ट कर रही है, देखिए, और न्यू एनर्जी, उस कारण न्यू एनर्जी धरती पर उतर रही है, डिवाइन फेमिनाइन धरती पर उतर रही है। और आपको थोड़ा पूरा बैकग्राउंड समझना होगा कि ये धरती का एसेंशन क्या हो रहा है। और आपको पता है कलयुग खत्म हो चुका है, मयन कैलेंडर खत्म हो चुका है, अभी जो है ये सतयुग की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। और ये जो नए युग की स्थापना, ये कहाँ से शुरू हुई? जो रियल जो पावरफुल एनर्जी है ना, जी। डिवाइन फेमिनाइन की, ये कोरोना के बाद से, कोरोना के वक्त से स्टार्ट हुई आनी धरती पर। ओके, अच्छा। तो ये जी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, पर ठीक है। तो उस वजह से क्या है, सभी लोगों में, चाहे आप ध्यान करो या ना करो, आप धरती पे हो ना, तो इसका जी, मतलब आप इस चीज के लिए बने हो। इसका मतलब आपको ये चाहिए, आपकी आत्मा को ये चाहिए, आपकी आत्मा आपको कुछ पुकार रही है। तो बेसिकली अगर आपकी आत्मा आपसे बात नहीं कर सकती है तो वो इस तरह की कुछ हलचल करेगी आपके, या तो माइंड में, आपके शरीर में। तो देखिए, मुझे बताइए सच में कि आत्मा हमसे बात कर सकती है क्या हमारी? कैसे मुझे करेगी वो? हमारे शरीर के थ्रू ही बात करेगी तो ही हमें समझेगा ना। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हो, अगर आप वो उतना खुद को लेके जाके नहीं सुन पा रहे हो, तो उसको तो शरीर के स्तर पर आके ही आपको बात करना होगा ना, राइट? तो ये सिम्टम जो आपके आ रहे हैं बॉडी में या फिर जी, माइंड लेवल पे, जी, दिस आर द कम्युनिकेशन part of your soul to you that you need to do something which you are not doing, you have not started doing, अभी तक आपने वो शुरू नहीं किया है जो आपको करना चाहिए अब तक। अच्छा जी। समझ में आया आपको? जी, जी मैम, और जो डिवाइन फेमिनाइन आप एनर्जी कह रहे हैं, इसके लिए मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है? पहले बेसिकली तो आप एक सिंपल मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए। जी, और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन, इफ यू आर लुकिंग फॉर डिवाइन फेमिनाइन, देन स्टार्ट विद डिवाइन फेमिनाइन साधना, स्टार्ट विद डिवाइन फेमिनाइन मेडिटेशन। जी, ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक आप यू। वो जो होता है वो डांस फॉर्म में ज्यादा होता है। जी मैम, मैं करना चाहूंगी, मैं कहाँ से उसको कर सकती हूँ? आप कहीं से भी कर सकती है, आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकती हो, क्योंकि मैं खुद अभी जो है ना वो डांस मेडिटेशन के मेरे स्टार्ट होने वाले हैं। जी, जी मैम, मैं आज भी हमने इंटरेस्टेड। डांस से शुरुआत किया है, आज हमने मैंने भी मेडिटेशन। किया मैम, मैंने भी किया आपके साथ। चलो, तो आपने आज तो शुरुआत कर दी, बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। बहुत 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 बधाई हो आपको। जी, जी, थैंक यू। मैं आपसे You टच just में stay रहूंगी मैम। connected with me personally, you just stay connected। आप जी, मुझे आपका नाम जो है व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, ज्योति आनंद, और लिख के भेजिए कि डिवाइन फेमिनाइन साधना, ऐसे लिख के भेजिए। इसी चैट में लिख दूं मैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे आप पर्सनली मोबाइल नंबर पे मैसेज कीजिए। जी, चलो जी, मैं ठीक है जी, काम ठीक करती है हूँ, जी। ये मैं नंबर लिख लेती हूँ। 981877। इस पे आप मुझे मैसेज करिए, जी मैम। ठीक है? ठीक। ओके। जी, तो दोस्तों, ध्यान देके आपको सुनना है, ताकि जो है आपके भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको भी जो है आपका माइंड क्लियर होता रहे दूसरों का। जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से, शालिनी जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ जी, नमस्ते, आप कहाँ से हैं? नमस्ते मैम, लखनऊ से बात कर रहे हैं। अच्छा, बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? आपने रजिस्टर किया था? जी किया था मैडम, अभी ज्वाइन अभी लेट किया है जूम हाँ, पर। बोलिए। मैम, अपने बेटे से रिलेटेड क्वेश्चन था, बेटे के कैरियर से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन था? उसका जॉब का था क्वेश्चन, जॉब रिलेटेड। ऐसे नहीं, आपको क्वेश्चन पूछना है। मैम, जॉब उसकी कभी तक लग जाएगी?
टाइम है शालिनी जी, मैसेज तो ऐसा आ रहा है कि काफी टाइम है, वो तैयार नहीं है जॉब के लिए अभी। और उसको भी पता है कि शायद वो इंटरव्यू के लिए जाए तो भी वो तैयार नहीं है, तो मे बी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो क्यों तैयार नहीं है, क्या कमी है, ये उसी को पता है। इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ करना होगा मैम? आपको नहीं, उसको करना है शालिनी जी। उसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी पे काम करना, खुद की कॉम्पिटेंसी पे काम करना। कॉम्पिटेंसी। वहां पे थोड़ी सी कमी है, ऐसे मैसेज आए। तो कुछ नहीं, वो उस पे काम करना शुरू कर दे तो फिर 6 महीने में या साल भर में लग जाएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू थैंक यू, शालिनी। थैंक यू मैम। ओके ओके, नेक्स्ट जो है, क्या नाम है ये, आकाश क्या नाम है, चैतन्य आकाश। जी जी जी, यस मैम। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते मैम। कहाँ से आप? मैडम मेरा नाम, वैसे मेरा मुमताज अंसारी नाम से मैंने किया था पिछली बार। नहीं, मेरा नंबर नहीं आ पाया था, तो आपने बोला था अगले में आएगा। हाँ जी, कहाँ से आप? जी मैं उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा उत्तराखंड। ओके, बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे आकाशिक गुरु कौन है। आकाशिक गुरु मतलब आकाशिक गाइड जी की आप पूछ रहे हो? अपन एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछिए। गुरु एक जी, अलग हो गया, यस यस आकाशिक यस। गाइड अलग हो गया। जी गाइड तो मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, फिर अगर पता चले कौन है। आपको क्वेश्चन पूछना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो फिर ये मैडम ये है कि मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग की कोशिश की, पर अभी तक एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं कर पाया हूँ मैं, और वो आकाशिक रीडिंग भी, दोनों चीजें नहीं कर पाया हूँ अभी तक। वो ऐसा क्यों हो रहा है? आकाशिक रीडिंग आपको खुद की खुद करनी, तो उसके लिए तो आपको सीखना होगा ना। जी यस मैम। उसके लिए आपको सीखना होगा, वो तो हम भी सिखाते हैं, वो तो ठीक है, वो तो सॉर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या चाहिए? एस्ट्रल ट्रैवलिंग अभी तक नहीं कर पाया हूँ मैं। एस्ट्रल ट्रैवल ऐसी चीज है कि आपको जो है, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके एस्ट्रल ट्रैवल अपने आप शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको साधना बढ़ानी पड़ेगी। हाँ जी मैम, यही पूछना है कि कहाँ पे कमी हो रही है मेरे को, क्या कर, और एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा शिफ्ट चाहिए आपको, एक शिफ्ट उठानी पड़ेगी ऊर्जा आपको। अच्छा, ऊर्जा में कमी है मेरे। बढ़ानी होगी, कमी नहीं है। एक जो होता है ना, शिफ्ट होता है कि शिफ्ट होने के बाद फिर अपने आप वो चीजें होने लगती है। आप क्या साधना करते हो, कितनी देर करते हो? बेसिकली तो मैं ज्ञान मार्ग से हूँ मैम, ज्ञान मार्ग का साधक हूँ। तो मतलब मैं ऐसा कोई मतलब योगासन वगैरह पहले किया करता था, अब नहीं करता हूँ। अब मैं केवल साक्षी भाव में रहता हूँ। मेरी यही साधना है जो मुझे बताई गई है। हाँ, तो आप ध्यान नहीं करते हैं? साक्षी भाव ही ध्यान है मेरा। ज्ञान भारत मतलब कौन सा ज्ञान भारत, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ज्ञान मार्ग, अद्वैत मार्ग। अच्छा, सॉरी, वो तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर देखिए, जिसको आप बेसिकली ध्यान कह रहे हैं उसे। जो जी मैं कंसेप्ट आपको एनर्जी का बता रही हूँ, बेसिकली वैसे तो वो उसी के ऊपर बेस्ड है। कि जब आपने ये मुझे पूछा कि ऊर्जा की कमी है क्या, तो बेसिकली ऐसा होता है कि किसी में ऊर्जा की कमी नहीं है। हम सब तो वो चैतन्य है ना, वी जी आर जी, द यस मैम। सोर्स ऑलरेडी। तो फिर क्या या है, तो बेसिकली हमारा अवेयरनेस कम है, हम से जितने ज्यादा दूर है ना, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड हमें दूर रखता है। हम तो हम ही है एक्चुअली। पर जितना हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, उतने अपने आप जो है वो जो हमारी कैपेसिटी है, या फिर उसको यूज करने की, उसको समझने की, वो हमारे जी अंदर ये होने की, वो जो हमारी बढ़ने लग जाती है। अवेयरनेस बढ़ाना है बेसिकली। सब में ऊर्जा बहुत ज्यादा है, प्रचंड है, हम सब भगवान। ये तो कंसेप्ट बेसिक है। अवेयरनेस ही मैम साक्षी भाव में, उसी को इंग्लिश में अवेयरनेस बोलते पर हैं, वो साक्षी भाव को। अवेयरनेस का प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर वो कम गिर रहा है ना। ओके, राइट राइट जी मैम। आपको शायद कुछ और भी चाहिए, जरूरी थोड़ी है वो भी कीजिए, उसके साथ कुछ ऐड कीजिए साधना फिर, जी ताकि जैसे मैम। वही चीज बढ़े जो आज जिसकी आप ऑलरेडी साधना कर रहे हो।
अच्छा बेसिकली ठीक। तो अवेयरनेस ही बढ़ेगा ना आपका। जी 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 जी। यस मैम, अवेयरनेस बढ़ाने की ही साधना है मेरी। हाँ, पर आपको कोई और भी चाहिए, कुछ और आपको उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा आपकी साधना में, कोई टूल या कुछ भी, या फिर कोई ध्यान, कोई टेक्निक, कुछ भी हो सकता है। ओके। ओके, जी मैम, और आकाशिक रीडिंग फिर कैसे हो पाएगी मैम? आपको वो अगर सीखना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैंने यहाँ पे मेरा नंबर लिखा है, देखिए चैट बॉक्स में। जी मैंने सेव किया आपका नंबर। हाँ, आप मुझे फिर लिख के भेजिए, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपका नाम पूरा, आप कौन सी सिटी से हैं, उत्तराखंड, और नीचे लिख जी के भेजिए उत्तराखंड। आकाशिक रिकॉर्ड सीखना है करके। अच्छा ओके, जी मैम, ठीक है, तो थैंक मैं यू। आपको डिटेल्स भेज पाऊंगी ना अच्छे से। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ओके, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, आपका आई भी बहुत थिंक बहुत हम धन्यवाद। लास्ट आई थिंक 2 क्वेश्चन ले पाएंगे क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5। नेक्स्ट है लीशा गुर्जर, अनम्यूट कीजिए। मैम मैं टाइप कर दूं क्या अपना क्वेश्चन? आपका कैमरा ऑन कीजिए। मैम टाइप कर दूं क्या अपना क्वेश्चन में? अच्छा ठीक है, टाइप कीजिए। जुगल कोठारी जी लिख के तो भेज रहे हैं पर आपका हैंड रेजिंग नहीं आ रहा है। ओके, पूछिए जुगल कोठारी जी आपका क्वेश्चन। देखिए एक्चुअली ना मुझे ऑलमोस्ट 100 एप्लीकेशन आए, तो बेसिकली आधे घंटे में इट्स इम्पॉसिबल कि मैं 100 लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूं। ओके, पूछिए। एक मिनट। हेलो। हाँ, आपका कैमरा ऑन कीजिए। हाँ एक सेकंड। आत्मोदन मैम। आत्मोदन, आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ मैम। हाँ बोलिए। जी मैम, मैंने अपना सवाल ये पूछा था कि मेरा सोल पर्पस मुझे जानना है। जैसे आपने कहा ना कि आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से हम कुछ भी जान सकते हैं, मुझे अपने लाइफ का सोल पर्पस जानना है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। क्या ये हम जान सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से? देखिए आपका सोल पर्पस तो बेसिक जो बताया गया है वही है कि आप पिरामिड जगत और ध्यान जगत के लिए काम करने वाले। तो ये मतलब आपने मतलब आपको आप ऐसे ही मतलब गैसिंग सभी के लिए बता रहे हैं या कैसे? जैसे मैं जानना चाहता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर कर रही हूँ अभी इस वक्त। मतलब ध्यान प्रचार ही हमारा आंसर है। हाँ जी। अच्छा। और तो खुद की साधना बढ़ानी है, खुद के लिए काम करना है ये जन्म में। जी मैं तो कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं, इसीलिए मैंने आपका ये मैसेज देखा तो मैंने कहा पूछ लेते हैं कि हमारा मतलब सोल पर्पस क्या है। पिरामिड्स के लिए काम कीजिए ना तो ज्यादा से ज्यादा। मैं कर ही रहा हूँ मैम, ऑलरेडी हम गुजरात के अंदर में काफी कर रहे हैं और बहुत कुछ बढ़ रहे हैं आगे, सेवा बस दे तो ही रहे फिर हैं अपनी। आप बराबर कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन लिख के भेजा। देखिए लीशा जी, जो मैंने अभी इनर वर्क का जो एग्जांपल दिया है वही है आपका आंसर, क्योंकि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता तो जो भी कोई है आपको इनर वर्क करना होगा। आउटर वर्क कुछ नहीं होता है, इनर रियलिटी रिफ्लेक्ट्स आउटर रियलिटी, तो आपको खुद के ऊपर काम करना है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक सबके लिए है। इनर रियलिटी रिफ्लेक्ट्स आउटर रियलिटी। ओके, और हम कोशिश करते हैं और 2 लोगों को लेने की। हाँ, योगेश ठाकुर जी अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस जानना है मेरे को। एक ही क्वेश्चन बार बार सब लोग नहीं पूछना है। अच्छा चलो ठीक है, तो मेरा स्पिरिट गाइड कौन है वो बता रहे मेरे को। हाँ जी, स्पिरिट गाइड कौन है मेरा? स्पिरिट गाइड
आपके स्पिरिट गाइड तो देखिए 2 होते हैं, आपको एक का ही नाम जानना है क्या? हाँ, दोनों का बता दो मैम। तो देखिए बेसिकली ऐसा है कि स्पिरिट गाइड में ना एक्सपेक्ट ना करे कि कोई एकदम गॉड का नाम आएगा, एंजल का। हर किसी के अपने स्पिरिट गाइड होते हैं। आपको पता है स्पिरिट गाइड क्या होते हैं? हाँ, हर एक किसी का स्पिरिट गाइड होता है जो उसको गाइड करता है। पर क्या होता है, वो कौन होते हैं? वो हायर सोल्स होता है जो मतलब लाइक दे आर टेकिंग आवर एग्जाम, वी आर हियर फॉर एजुकेशन ऑन अर्थ। और वो देखिए उन्होंने देख, भी हमारी जैसी जिंदगी काटी हुई होती है और फिर बाद में हाँ, ऊपर जाने के बाद वो काम सिलेक्ट करते कि भाई हम स्पिरिट गाइड का काम करने के लिए तैयार है, राइट ताकि वो खुद स्टडी कर सके। जी। तो भाई आपके तो 2 नाम आ रहे हैं, एक है स्वाति हाँ, और एक है उमेश। अच्छा, ठीक ओके है, ओके। और सोल पर्पस मैम? एक क्वेश्चन हो गया। सोल पर्पस, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने आपको। अच्छा, स्वाति और उमेश। हाँ जी। ओके, पहले तो आप उनको ग्रेटिट्यूड देंगे हाँ, कि उन्होंने आज अलाउ किया मुझे उनका नाम बताने के लिए, तो आपको नाम पता चला है, सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके बाद में आप उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, आप जो चाहिए उनसे मांग सकते हो। ओके, अच्छा, हाउ टू कम्युनिकेट विद देम? ऐसे ही ध्यान में बैठ के, जैसे मैंने आपको बोला है। दे आर व्हाट एक्चुअली, हायर सोल और व्हाट मींस फ्रॉम व्हिच डायमेंशन? वो नहीं, वो मैंने आपको अभी बता दिया ना, जो मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। अभी आगे का आपका टास्क है। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, आदित्य अग्रवाल अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम। हेलो, कहाँ से आप? मैं नागपुर से ही हूँ। हाँ जी। मुझे ये जानना है कि मेरी शादी कब होगी। अच्छा, Like okay. I'm 30 years old right now, Okay. and it's difficult for me, I think so, to find a soulmate. I don't know why. घर वाले देख रहे हैं? हाँ। ओके, क्या आपको सच में शादी करनी है? हाँ। हाँ, आप सच में करनी है। तो बेसिकली मैडम क्या है ना, थोड़ी से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो आपके बीच में आ रहे हैं। वो ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना होगा, जो कोई भी पंडित के पास जाके आप रिमूव नहीं कर सकती वो ब्लॉकेजेस। मैम किस तरीके के ब्लॉकेजेस है? वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है जो बीच में आ रहे हैं, जो आपको शादी नहीं करने दे रहे, क्योंकि आप ही ने लिखा था कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है। अब आप बोल रहे हैं अब मुझे एक्सपीरियंस ना करना, मुझे तो शादी करनी है। मुझे ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस करने हैं, ये मैंने लिख के लाई हुई। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है। मतलब वही है कि वो ब्लॉक को रिमूव करना है आपको, आपका जो है वो सोल प्लान बदलना होगा। ओके, और सोल प्लान बदलने के बाद में आपका ये जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? ओके ओके ओके, ग्रेट। तो इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली फॉर दैट, नो इश्यू। ठीक है मैम, मैं नागपुर से ही हूँ, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? देखिए मैंने ऑफलाइन सारा बंद किया है। अच्छा, मैं सबको नागपुर के लोगों को भी ऑनलाइन ही मिलती हूँ मैं। जी चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, जैसे आपको कंफर्टेबल है। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम अभी चलते हैं। श्वेता जी चलिए बताइए क्या क्या आया आपको। वो क्या नाम है आकाश जी, वो जो आप आकाशिक गाइड की बात कर रहे हैं ना, वो जब हम सिखाते हैं तो वो आप ही बताते हो, हम वही टास्क करवाते हैं कि आपके आकाशिक गाइड का नाम क्या है, तो आपको वही पता चलेगा, डोंट वरी। हाँ जी श्वेता जी बोलिए। जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी जी जी।
मैम मुझे विजन आए हैं दो। एक तो विंग्स मुझे हिलते हुए दिखाई दिए और दूसरा मुझे दिखाई दिया कि माउंटेन्स के बीच में पानी है, पोन टाइप कुछ है, और उसमें मेडिटेशन में कोई फीमेल बैठी हुई है। ये दो चीजें दिखाई दी और एंजल्स के विंग्स दिख रहे थे। अच्छा, वो कोई पर्टिकुलर एम जैसे वो आपका मुझे बेसिकली क्वेश्चन क्या था? मैं भूल गई इतने सारे क्वेश्चन। स्पिरिचुअल मेरा कुछ एम है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में आने का मुझे कुछ एम, कुछ उद्देश्य पूरा करना है, ऐसा था हाँ, कुछ। तो वो जो आपको जो वो बैठी हुई दिखाई दी ना, कौन है वो? पता नहीं, पर पानी उनके बिल्कुल ऊपर तक था, वो पानी के अंदर मेडिटेशन कर रही थी। तो इसका मतलब या तो आपको कोई गॉडेस दिखी होगी ना, आपने वो क्वेश्चन नहीं डाला होगा कि कौन दिखा कर। हाँ, वो नहीं डाला मैंने क्वेश्चन। और विंग्स दिख रहे थे मुझे हिलते हुए। तो बेसिकली तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए आपका डायरेक्ट कर रहा है आपको भी, ओके, है ना? सतयुग की स्थापना के लिए जो जो करना चाहिए, अभी उसमें भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं ना, तो आपको वो जो है वो धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में आपका है उसके भी अंदर। औरतों से रिलेटेड है काम करना, जी, है ना? जी जी। ओके, बट एनर्जी बहुत फील हो रही थी और वाइट वाइट ऐसा कुछ क्लाउड सा कुछ दिख ही जा रहा था, बट क्लियर विजन नहीं आ रहा था। ओके, हाँ जी, ग्रेट। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इतना तो पता चला कि आपको डिवाइन फेमिनाइन के लिए, लेडीज के लिए काम करना है, वहां पे मदद करनी, वहां पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। जी, ठीक है। Okay, thank you very much. So thank you everyone for your patience, and I'm so grateful that you have come today. अभी भी हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ है, हम जो है वो ये करने वाले हैं कि अभी आकाशिक हीलिंग का हम करने वाले हैं, पर उसके पहले आपके मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। क्या आप सब मुझे 2 मिनट देंगे ताकि मैं जो है कुछ जो मुझे सरप्राइज था वो मैं आप सबको बता सकूं? ओके, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। एंसेस्ट्रल हीलिंग का जो है ना, मैं आज जो है वो सारे ग्रुप्स में मैं डाल दूंगी एंसेस्ट्रल हीलिंग के मेडिटेशन के लिए, ठीक है? ओके, गुड। तो दोस्तों, आज कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि मैडम मेरा सोल पर्पस होता है ना, वो सोल पर्पस। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि हमें जो है हीलिंग पार्ट पे स्विच होना है, जो हम कम से कम 15 से 20 मिनट हमें लेना है। जो ग्रुप में नहीं है, आप जो है वो मुझे या तो पर्सनली मैसेज कीजिए या फिर यहाँ पे आपका नंबर लिख लीजिए, आपको ऐड किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों कहाँ से शुरू करूं? चलिए, मैं 2-3 आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ तो ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर सके। ठीक है, जब मैं पीएसएसएम में आई थी, अभी कितने सारे लोग जो है वो पीएसएसएम को नहीं जानते यहाँ, जो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी हूँ मैं। तो मेरी तो जर्नी वहीं से शुरुआत हुई थी ध्यान की, पर जब मैं पीएसएसएम में आई थी ना दोस्तों, तो मुझे पीएसएसएम में आने के बाद ही एक दिन रात को जो है ना, मैं एक दिन रात भर जागी थी, मुझे नहीं पता क्यों जागी थी, पर मुझे उस दिन रात भर बड़े मैसेजेस आ रहे थे, शायद मेरे स्पिरिट गाइड या फिर हायर बीइंग्स जिनको कहिए, वो जो मुझे ना सवेरे 3 से स्टार्ट हो गया, वो जागी तो मैं पूरी रात भर थी, पर 3 बजे से मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे, ऐसा लग रहा था क्लियरली कि कोई मुझसे बात कर रहा है। तो मुझे उसी दिन आ गया था कि भाई तुम्हारा रास्ता जो है ना वो अलग है, अभी फिलहाल तो तुम ये कर रही हो, पर तुम्हारा रास्ता अलग है, और तुम्हारा मतलब जिनको तुम्हें सर्व करना है आगे जाके, वो भी लोग अलग। वो पहला था। दूसरा ही किस्सा ये था कि मुझे एक दिन सपने में ये दिखा कि मैं एक क्लासरूम में बैठी हूँ और वहां पे वो सिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई आके मुझे ये कहता, अरे प्रिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या हो गया? तो अरे तुम गलत क्लास में बैठी हो ना। मैंने कहा क्या? मैंने हाँ, और वहां पे तेरी एग्जाम है, तू तो गलत क्लास में बैठ रही है, गलत क्लास का सीख रही, गलत क्लास इन द सेंस स्टैंडर्ड, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड, जैसे 7th स्टैंडर्ड, मान लीजिए कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा आके 8th स्टैंडर्ड में बैठ गया गलती से, उस तरह।
तो मैं सपने की बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसे दौड़ी वहां से निकल के, और मैं परेशान होगी कि मेरी क्लास कौन सी है, मेरा स्टैंडर्ड कौन सा है, मैंने कौन से क्लासरूम में जाके बैठना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए, और वहीं पे वो सपना खत्म होता है दोस्तों। ये 2 मेरे किस्से हैं। और तीसरा होता है कि सोल पर्पस, जो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा सोल पर्पस क्या है? तो मेरे लिए ये था कि सोल पर्पस तो पता चल गया, पर मैंने अभी तक सोल पर्पस पे जो मेरा रियल जो मिशन है, ऑब्वियसली बहुत सारे मिशन है, उसमें से मैंने अभी तक काम ही नहीं किया। और मैं आज बहुत खुश हूँ, यू ऑल आर विटनेस, जिसको मैं पहली बार शेयर करने जा रही हूँ। मेरा रियल सोल पर्पस जो है, मैं उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ। जो पिछले मैंने कुछ महीनों से मैंने इतना सीखा है, इतना मतलब उस पर लिटरली खर्च भी किया है सीखने के लिए, अपने आप पे जो काम किया है, अब वो मैं देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। और वो चीज जो है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो ये किन लोगों के लिए पता है? मेरा सोल पर्पस क्या है बेसिकली आपको पता है? मेरा सोल पर्पस है वुमेन्स, औरतों पे काम करना। अब औरतों पे क्या काम करना है? मुझे उनको गाइडेंस देना है। किस चीज का गाइडेंस पता है? मुझे उनको ये गाइडेंस देना है कि देखिए, एक शॉर्ट में एक औरत की स्टोरी बताती हूँ, एक जनरल, जरूरी नहीं कि हर लेडी को ये फिट हो, बट यस 90% तो होती है कि आप जिंदगी में सब कुछ कर जाते हो, सब कुछ दे देते हो, और आप जिंदगी में एक स्टेज पे ऐसे आके रुक जाते हो कि आप खुद को, आपका मन पूछने लगता है मेरी आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज माई सेल्फ आइडेंटिटी? क्या मैं एग्जिस्ट करती हूँ? दिखने के लिए तो हूँ, पति के लिए पत्नी, बच्चों के लिए माँ, सास ससुर के लिए बहू, मम्मी पापा के लिए बेटी, पर क्या मैं एग्जिस्ट करती हूँ? कोई शेयर नहीं करता है दोस्तों क्वेश्चन, पर हर औरत अपने आप से ये पूछती है। कब पूछती है? बच्चे बिच्चे होने के बाद, उसके पहले नहीं। एक लड़की नहीं पूछेगी जनरली, क्योंकि ये बहुत गहरा प्रश्न है। डज आई एग्जिस्ट रियली? दूसरा ये होता है कि मेरी आवाज दब गई है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, आई फील चोक। मुझे ना यहाँ पे चोक फील होता है जबरदस्त। मैं पति के सामने कुछ बोलने जाऊँ, बोल नहीं पाती हूँ। बच्चों को कुछ कहना है, बोल नहीं पाती हूँ। सास ससुर के सामने तो ऐवे ही बोल नहीं सकते। आई फील चोक। यहाँ शुरू होता है हमारा गिफ्ट का सिलसिला। फिर ये यहाँ से यहाँ पे हार्ट पे आ जाता है ना? सारी जो तकलीफ है, फिर हार्ट पे आने के बाद क्या होता है पता है? मैडम छोड़िए, मैडम को सारा हुआ है ना, इसलिए मैडम अच्छे से बता पा रही है। रिलेशनशिप इश्यूज, पति के साथ नहीं जम रहा, इनके साथ नहीं जम रहा है। आजकल लोग मुझे कहने लगे ये तो बदल गई, ये झगड़ालू होगी, या फिर व्हाटएवर, इट्स नॉट, या फिर आप चुप हो जाते हो, एकदम सुन्न हो जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो। या तो आप डिप्रेस हो जाओगे, या फिर यू विल शाउट, आपकी आवाज ज्यादा बढ़ के आएगी, या तो पूरी दब जाएगी, धस जाएगी। ये दो के बीच में कुछ नहीं होता है किसी बैलेंस्ड वाला। ये 2 स्तर होते हैं। हाइपर हो जाना अचानक से, ओवर रिएक्ट, ओवर शाउट, या फिर पूरी आवाज दब जाए। आगे रिलेशनशिप तक, यहाँ तक आ गए, और फिर हमें मिलने लगते गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या पता है? बाय प्रोडक्ट है सारी चीजों की। थायराइड, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, और पता नहीं क्या कुछ नहीं मिलता है हमें। तो दोस्तों, मैं पद्मप्रिया सरोदय ये सारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ। ये सारे जितने भी आपके जिंदगी के मोड़ है, पड़ाव है, स्थितियां हैं, ये सबको मैं जानती हूँ, क्योंकि ये सबसे मैं गुजरी हूँ। पर सिर्फ इतना है, पिछले 2 साल से, जब से वो मुझे सपना गिरा है ना, अरे तू गलत क्लास में बैठी है, जो दौड़ी हूँ मैं, दिन रात दौड़ी हूँ अपने ऊपर काम करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। और वो सारी चीजों से मैं आज बाहर आ गई, सारी चीजों से।
और सबसे गहरा वाला पता है क्या, जो ऐसे वो ब्रह्मास्त्र होता है ना जो चुभता है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मांगने पड़ते पैसे। अब सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ तो वो अर्न करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। अगर आप अच्छे घर से हो तो फिर ऐसे ही हो जाता है ना, क्या जरूरत है, पर अंदर तो लगता है ना, अंदर तो लगता है ना कि भाई मेरे पास रहा तो मुझे वो फ्रीडम रहेगा हमेशा। ये सारी चीजों के लिए पता है मैं आज एक चीज लेके आई हूँ, दिस इज व्हाट इज माय मिशन, दिस इज व्हाट इज माय हार्ट। और ये मैं ट्रेनिंग देने के लिए मैं लॉन्च कर रही हूँ, जो मेरे अगले संडे है, मेरा एक वर्कशॉप है 4 घंटे का, 4 घंटे का वर्कशॉप है, जो मैं अभी 1 मिनट में आपको ये शेयर करती हूँ। 1 मिनट। ये बहुत गहरी चीज है दोस्तों, ये ना बहुत मुश्किल होता है इसे एक्सप्रेस भी कर पाना। आपको पता है अब तक जब मैंने खुद को हील नहीं किया था ना, तब मैं ना चोक फील करती थी। और किस लिए चोक फील करती थी कि मेरी आवाज दब गई है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। आपने कभी वो एक्सपीरियंस किया है कि आप बिल्कुल सही हो पर तो भी आपको बार बार सबके सामने माफी मांगनी पड़ रही है, ताकि क्यों? क्योंकि आप अच्छे से ढंग से वो बता नहीं पा रहे, आपको वो शब्द नहीं मिल रहे, आपको वो टोन नहीं मिल रहा है ना, आप उस ढंग से नहीं बता पा रहे हो जो एक नॉर्मल ढंग से हमने बताना चाहिए, क्योंकि हम हिल चुके हैं अंदर से, हम वो दिखा नहीं सक रहे किसी को। जब हमारा मुंह खुलता है या हम कुछ करने लग जाते हैं या फिर सब्जी में ऊपर नीचे हो जाता है, तब वो दिखता है। आजकल खाना बनाना बिगड़ गया है। होता है ना, अरे ये क्या बना रही है आजकल तू, हाँ ये पहले तो नहीं करती थी, या फिर आपको खाने बनाने में ही रुचि हट गई है, ऐसा भी होता है, मन उड़ गया है पूरा, हर बात से मन उड़ गया है। ये है हमारा जो 26 मार्च को मैं लेने वाली हूँ, इज द कंप्लीट वर्कशॉप और 4 hours योर डेट विद ड्रीम डेस्टिनी, ये नाम है उसका, योर डेट विद ड्रीम डेस्टिनी। और इसमें आपको क्या मिलेगा, आप आपका नया अवतार कैसे क्रिएट करना है, आप उसी वक्त उसी दिन करोगी, ये मैं आपको प्रैक्टिकली आपसे करवा के लूंगी उसे। यू विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप वो ढूंढ पाओगे। कितने सारे लोग हैं कि नहीं पता यार मुझे क्या करना है, या मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मेक यू फ्री फ्रॉम विक्टिमहुड। बहुत सारे लोग हैं कि जो विक्टिम स्टेट में है, वहां से निकलने के लिए मदद होगी, और आपका ड्रीम डेस्टिनी ब्लूप्रिंट जो है वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट बनेगा, और कुछ भी नहीं है इसके। एक बेसिक, मैं सीरियस लोग मुझे चाहिए, सीरियस। अगर आप इफ यू आर अ मैन एंड इफ यू फील दैट यू वांट, आई वेलकम यू, बट मेरा बेसिक क्लियर है कि वो सारी लेडीज के लिए मुझे हेल्प आउट करना है, दोज हु आर लुकिंग फॉर इट, दोज हु आर डेस्परेट फॉर इट, कि जो खुद के लिए काम करने के लिए, वो समझने के लिए, वो सीखने के लिए तैयार है, उन लेडीज के ऊपर मैं काम करूंगी, और मुझे वो करना है दोस्तों। तो आई वेलकम यू, और इसे कुछ भी नहीं, सिर्फ 55 रुपीज चार्जेस, सिर्फ 55 रुपीज। चाहिए तो 9 रुपए भी दिए तो भी चलेंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट वर्किंग ऑन यू। एंड व्हाई आई एम टेकिंग मनी एनर्जी एक्शन, बिकॉज आई वांट सीरियस कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट, एकदम डैम डेस्परेट। ये मुझे मेरे लिए करना है, और मुझे इससे बाहर निकलना है, नो मैटर व्हाट। और इसमें आप क्या क्या सीखोगे पता है, 4 चीजें होगी आपके ऊपर, 4 स्तर रहेंगे ये वेबिनार के। क्लियर, कनेक्ट, कलेक्ट एंड चेंज। चेंज इमीडिएटली नहीं आता है। क्लियर, कनेक्ट, कलेक्ट एंड चेंज, ये 4 हमारे एक स्टेप्स रहेंगे, 4 स्तर रहेंगे, और ये चारों स्तर पर हमारा अलग अलग काम रहेगा। तो पहले जो है वो क्लियर में हम क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू मीट योर एनिमीज। पहले पता तो चले भाई हमारे दुश्मन कौन है, या फिर हम जिनको समझते क्या सच में वो हमारे दुश्मन है भी या नहीं है ना। मीट योर एनिमी, देन पुल देम, उनको निकालो, बाहर निकालो ना, समझो ना कि कौन है क्या है, राइट। उनको सरफेस पे लेके आओ, हमारे कॉन्शियस माइंड के सरफेस पे लेके आओ। फिर बाद में क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में,
फिर बाद में कौन सा चार्ज, रिकॉग्नाइज द चार्ज दे कैरी, कौन सी ऊर्जा आपको प्रदान कर रहे हैं वो, हर घड़ी हर वक्त कौन सी ऊर्जा पास हो रही है, कौन से चार्जेस वो कैरी कर रहे हैं आपके एनिमीज। ठीक है, फिर बाद में क्या है, क्लियरिंग टेक्निक से हम वो चीजें क्लियर करें आपके जीवन से, वो चीजें हम क्लियर करेंगे क्लियरिंग टेक्निक से। ये पहला स्तर हुआ। दूसरा स्तर क्या है, कनेक्ट। कनेक्ट में क्या करेंगे हम, कनेक्ट विद योर न्यू अवतार। पहले तो कनेक्ट करना होगा, फिर बाद में डिजाइन योर ड्रीम डेस्टिनी। आप खुद, क्योंकि देखिए जीना आपको है और आपने ही भुगता है, आप ही जो है वो सारा कुछ है के समझ के देख के सुन के यहाँ तक पहुंचे हो, तो हक बनता है आपका कि आप खुद डिजाइन करो उसको, खुद के हिसाब से उसको बनाओ और फिर अलाइन योर ड्रीम डेस्टिनी, उसके साथ अलाइन हो जाओ। ये दूसरा स्तर है। फिर तीसरे स्तर में हम क्या करेंगे, कलेक्ट। कलेक्ट में क्या करेंगे, कलेक्टिंग में बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पहला, क्योंकि उसके सिवा तो आगे कदम ही नहीं बढ़ता है ना फ्रीडम का। और दूसरा क्या है, बिल्ड योर ड्रीम डेस्टिनी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल यू नीड टू एक्वायर। स्किल के ऊपर भी काम करेंगे ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत अच्छे से और आराम से हो सको। और लास्ट, ये 3 स्तर पर काम करने के बाद आपको आसानी से क्या मिलेगा, चेंज। चेंज में क्या होगा, चेंज में 2 चीजें होगी। एक तो हीलिंग थ्रू योर न्यू अवतार, हीलिंग, ठीक है, प्रैक्टिकली कॉन्शियसली। मैं अभी कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बोल रही हूँ कि जो सिर्फ थेरोटिकल हो, ये सारा प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरा, यू आर गोइंग टू नो, आई मीन इतना काम करने के बाद ड्रीम डेस्टिनी ब्लूप्रिंट, ठीक है। और ये खुद मैंने सीख के समझ के खुद के ऊपर काम करके ये मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने बनाया। एंड आई एम द प्रूफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने जब इसको डिसाइड किया, क्योंकि मैंने अब तक 6 साल तक सारा फ्री में दिया, पता चला कि जब हम देते हैं तो कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते। और ये काम लेने का नहीं है, ये काम करने का है, खुद पर काम करने का है। इसलिए ऐसे लोग चाहिए कि मैडम चलो मैं तैयार हूँ, काम करते हैं साथ में, मुझे मेरे ऊपर काम करना है, मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मुझे वो चेंज देखना है मेरी जिंदगी। नो मोर ताने, नो मोर रोना धोना। रोएंगे हम, हंसी वाले आंसू चाहिए मुझे हर उस स्त्री के लिए। और लास्ट में 2 सेंटेंस बता दूं दोस्तों। I lost my mother who gave birth to me just because she had gone through so much what you are going through, what I had gone through. और उसके लिए कोई कहने वाला नहीं था कि तू कर सकती है, मुझे तुझ पर विश्वास है और ये जरूर होगा। कोई नहीं बोलता है ये एक लेडी को। ये 2 शब्द अगर उसके मिल जाते थे ना उसको, शी वॉज अ वॉरियर, वो जिंदा रहती थी। ना उसको किसी का पैसा चाहिए था, ना उसको किसी की मदद चाहिए थी, उसको 2 शब्द चाहिए थे, तू कर सकती है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास। ये बीज मंत्र है डिवाइन फेमिनाइन की। जितना मेरे आंखों में अभी आंसू आ रहे हैं ना दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि जिनको ये सुनना है ना उनके आंखों में भी अभी आंसू आ रहे होंगे। क्योंकि हमें क्या सुनने को मिलता है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती है। क्या मम्मा, तुझे भी नहीं समझता है? ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे रहते हैं क्या? एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, आई लॉस्ट हर। और मुझे पता चला है कि एक रियल मतलब एक स्त्री को, एक औरत को यही 2 शब्द चाहिए है और वो इतना ऊंचाई पे पहुंचती है, इतना ऊंचाई पे पहुंचती है, वो जो चाहिए वो कर सकती है। वो अपना खुद की जिंदगी कहां से कहां पहुंचा सकती है। रिलेशनशिप खराब है, चलेगा, वो सुधारेगी ना, माँ है,
एक माँ सबकी माँ होती है, वो अपने पति को भी संभाल सकती है, उसको भी प्यार देके उसको भी सुधार सकती है, बच्चों को भी कर सकती है, सबको कर सकती है, पर खुद का क्या, उसको कोई बोलने वाला ऐसा नहीं होता है। And that's it, my dear friends. I am here because I am desperate to work for this, क्योंकि I have gone through all these stages. मैंने मुझे खुद को कैसे संभाला है, क्योंकि मुझे बोलने वाली जो थी वो तो जिंदा ही नहीं थी ना, तो मुझे कौन बोलने वाला था? मुझे तो कोई बोलने वाला ही नहीं था। और जब बचपन में था तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, हार्डली उसने 10th कुछ किया होगा, उसको कुछ समझता ही नहीं था कि वो मुझे कुछ बोल सके। पर वो बिना बोले, पता है, बिना बोले जो होती है ना, विदाउट वर्ड्स, जो भाषा होती है, सपोर्ट की भाषा, वो उसने मुझे हमेशा सिखाई। कभी कुछ नहीं बोलती थी, बस करने देती थी मुझे। शी अलाउड मी। जब मेरे पापा ने कहा मेरे 12th में कि तू पढ़ाई नहीं करेगी, तेरी तो शादी करनी है भाई, और तेरी शादी होके रहेगी, और मैंने कहा था नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे तो मेरा हायर एजुकेशन, मैं बहुत ही एम्बिशियस गर्ल थी पहले से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पैसे ही नहीं देंगे तुझे, कैसे करती है बता। मैंने कहा मुझे तो करना है एजुकेशन मेरा। पार्ट टाइम जॉब किया, कहीं से कुछ ना कुछ कमाए। सिर्फ एक ही थी मेरे साथ में, वो है मेरी माँ। कुछ बोली नहीं वो कभी, पर आज मैं समझ सकती हूँ और बता सकती हूँ कि ये सपोर्ट कितना बड़ा है। सॉरी मतलब ये ऑब्वियस है ये आंसू निकलना, क्योंकि पहली बार कर रही हूँ ना मैं। सो वो सपोर्ट मुझे देना है। और आपको पता है, यू नो, हर डेथ वाज लाइक शी डिड सुसाइड एक्चुअली, इसलिए शायद ज्यादा निकल रहा है ना। और मैं जिंदा ही हूँ इसलिए दोस्तों, कि मैं वो सारी औरतों को बोल सकूं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुझे वो फैमिली बिल्ड करनी है कि एक औरत को एम्पावर्ड फील हो। अरे ये छोटी चीजें हैं यार, जब हमको हमारे पूरा घर वाले, पूरा खानदान भी अगर आपको बोले ना कि तू बुरी है, पर अगर आप खुद को एम्पावर कर लो ना तो कोई फर्क नहीं गिरता। आप में उतना दम है कि आप पूरे खानदान को बदल दो। आई चैलेंज यू, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरा, क्योंकि मैंने ये किया है। डंके की चोट पे कहती हूँ आज मैं, ये मैंने किया है। पूरे खानदान को बदलने की ताकत रखती हो आप। आपको कोई विक्टिम मोड में नहीं रख सकता है, बस आपको वो शक्ति को जगाना है। एंड आई वांट दैट कमिटमेंट, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बहुत बड़ा है मेरे मिशन के लिए, और बहुत गोल घूम के आई हूँ मैं एक्चुअली लाइट लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड सिखाती हूँ। पर पता है आपको, जब मुझे एक्टिवेशन मिले थे तो सच्चाई क्या पता है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि प्रिया जब तू इस पे काम करेगी ना तेरे मिशन पे, तब तुझे ये काम आएगा। और मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि जब मेरी लाइट लैंग्वेज इस मिशन पे, जब मैं इसको वर्क करूंगी ना, तो उसके हीलिंग इतने जबरदस्त होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपका हीलिंग भी होगा, आप खुद को इस तरह पावरफुल बनाएगी कि कोई फर्क नहीं गिरेगा। आप विक्टिमहुड से 100% बाहर आए, 100% बाहर आए, एंड यू विल फील अमेजिंग। यू विल फॉल इन लव विद योरसेल्फ, जो आप न्यू हो। और ये जो कुछ भी है ना, वो मेरी माँ की देन, मैं सच बोलती हूँ, और ध्यान की देन है। क्योंकि मेरे लिए वो दिन ऐसा था कि मैं तो पूरी कोलैप्स होने वाली थी। सिर्फ ध्यान किया मैंने वहां पे बैठ के, क्योंकि मेरे लिए ना वो सहने वाला नहीं था, वो ट्रॉमा था मेरे लिए बहुत बड़ा। और पत्री सर का थैंक यू उस चीज के लिए, क्योंकि उस वक्त मैं आई हैड चूजन टू डू मेडिटेशन ऑन अ डेथ बेड। और फिर मुझे आया, तब मुझे दिखा सारी औरतें, सारी बहनें, सारी लड़कियां, एंड आई हैव चूजन टू लिव फॉर देम। मैंने खुद को, आई हैव नॉट ब्रोकन डाउन माई सेल्फ, मैंने उठाया खुद को। और वो माँ मेरे साथ है दोस्तों, हम सबके साथ में है, और उसने मुझे चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो जो लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं, 4 घंटे का वर्कशॉप है जिसपे हम खुद पे काम करेंगे, उसमें आगे की भी जर्नी होगी ऑब्वियसली। आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। क्या मैसेज कीजिएगा? I want to have a date with my dream destiny.
क्या डेट करने के लिए आप तैयार हैं आपकी ड्रीम डेस्टिनी से? अगर यस तो आ जाइए। पद्मा प्रिया सरोदे आपके लिए बाहें खोल के तैयार है। उस दिन धमाका करेंगे, खुद पे काम करेंगे। ओके ग्रेट। तो चलिए, आई थिंक सिर्फ ये बोलने से ही कितना सारा हीलिंग हो गया है आज। ओके बहुत सारी है कहानियां और मैं सुनाऊंगी, मैं जर्नी होगी वो एक कंप्लीट। और थैंक यू सो मच मुझे अलाउ किया आपने मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए। थोड़ा मुश्किल होता है, इमोशंस है, सीखा मैंने रिकॉग्नाइज करना, दबाना नहीं। मेरी जर्नी में सीखा है रिकॉग्नाइज योर इमोशन, रिस्पेक्ट योर इमोशन, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन मोशन। इसलिए बहने दिया, मेरी बहनें हैं आप सब, आप ही के सामने बहन हैं। ओके ग्रेट। तो चलिए अब हम आकाशिक हीलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए मैं फिर से एक बार मेरा नंबर जो है यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आप मुझे जो है, या फिर DDD डेट विद ड्रीम डेस्टिनी, DDD भी अगर कोड लिख के भेजोगे ना, आपका नाम और कोड इतना भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना, तो मैं आपको फॉर्म भेज दूंगी। ओके ये है मेरा नंबर, मैं फिर से लिख रही हूँ और मेरा नाम भी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके DDD अगर इतना भी लिखा तो मुझे समझ में आएगा कि यू आर रेडी फॉर दैट। याद रखिएगा DDD ये हमारा कोड है, आपको नाम और ये DDD लिख के मुझे भेजना है जिन जिन लोगों को ये ज्वाइन करना है। मैं तो कहती हूँ आप सब आए, मुझे बहुत आनंद होगा। सबके लिए ये है। हाँ ऑब्वियसली मेरा मिशन लेडीज का है तो मैं लेडीज को ही ऑब्वियसली बोलूंगी, बट यस इफ यू फील कनेक्टेड विद माय हार्ट, इफ यू वांट दैट इन योर लाइफ, मैं जेंट्स को भी अलाउ करती हूँ, यू जस्ट कम डाउन। बट यस लेडीज जितनी भी अभी इस वक्त 45 मेंबर्स है, आई डोंट नो इसमें से कितनी लेडीज है, मेरे हिसाब से कम 80% 90% तो लेडीज ही होंगी। मैं तो कहती हूँ कि आप सब आइए, सब आइए। 50 रुपए नहीं दे सकते तो 9 रुपए दीजिए, बट विदाउट मनी तो मैं नहीं लूंगी आप, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी। ओके तो ओके ग्रेट, let's switch our energy and let's switch to Akashic record healing. यहाँ पे नहीं भेजना है वैशाली जी, ये अभी मीटिंग में बंद कर दूंगी तो ये चैट बॉक्स पूरा उठ जाएगा, मुझे नहीं ध्यान में रहेगा। आपको मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे भेजना है, ये चैट बॉक्स उड़ जाता है फिर बाद में मीटिंग जैसे एंड हो गई तो। ओके ओके ग्रेट, तो आंखें बंद कीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स होके बैठे। कनेक्ट करेंगे हम आकाशिक गाइड से, आकाशिक रिकॉर्ड से, क्योंकि अभी इतने सारे इमोशंस उठे हैं सबके ही, तो हम आज उसी पे हम हीलिंग के लिए काम करेंगे दोस्तों। और आज हम आकाशिक रिकॉर्ड की ऊर्जा के साथ साथ लाइट लैंग्वेज की ऊर्जा का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सरफेस पे आए हुए इमोशंस के ऊपर हम काम कर सके। बस आपको इंटेंशन रखना है कि आप तैयार है इसे रिलीज करने की।
Ikalakto kwa stakilek stiklaktarokto kushmanini anana kurwa bibab dinini ekstalakto kwasnika. Ilamdana nikastanam neninkas taktoro kukashni amama yatato kuru barabi yambadam imanana istanana o baktariba. Ilamnana kishto kuku waktanani astambarapa. Urubabaya samba. Ambasua ditatum darroktalalilium darwashuktam diastatamda iam dastatamda ias datatamda ias datatamda Roktes tawa iroktokushu watepein naku atrektas taktowa urok benderastekta laktos tua indalaktelektok stuk tua indalaktek stuk tua indalaktek tua indalaktek tua indalaktek tua
धीरे धीरे अपनी सांस पर वापस आए। धीरे धीरे अपनी सांस पर वापस आए। और जिनको अभी भी लगता है कि आपको अभी भी ध्यान में बैठना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, पर जो लोग वापस आ चुके हैं, जिन्होंने आँख खोल ली है, उनमें से किसी को अगर अपना अनुभव शेयर करना हो तो आप ध्यान का अनुभव शेयर कर सकते हो। बोलिए। मेरे जो भी प्रश्न थे वो उत्तर मिल गए मुझे। जैसे आप वेबिनार करती हैं वही मेरे को भी करना है, चाहे दिन के 12 बजे ही करूँ, वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। इसी तरह लोगों के प्रश्न उत्तर देकर काफ़ी कुछ हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी लाइट लैंग्वेज से मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रही थी कि हमारी सोल जर्नी में हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक लाइट वर्कर दूसरे लाइट वर्कर से क्या कह रहा है वो अनुभव कर पाई। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपनी दिल की धड़कन को महसूस कर पा रही हूँ, बहुत तेजी से धड़क रही है। तो ये लाइट लैंग्वेज मैंने पहली बार यूट्यूब में सुनी थी, आज आपके मुंह से दूसरी बार सुनकर मतलब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आज वो प्रमाण मिल गया कि आप वाकई में कोई ना कोई फेमिनिन अवतार हैं जो मुझे कुछ ना कुछ दिव्य संदेश देने आई हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, जो आप डायरी लिखती है उसका नाम क्या है? एनर्जी डायरी, उसका कोई नाम है? हम परचेज कर सकते हो डायरी? अमेजोन पे है वो? फाइंडिंग योर बैलेंस। फाइंडिंग योर बैलेंस। ओके, थैंक यू, बैलेंस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बैलेंस आभार। खाना मुझे मेरी जिंदगी में। आप कहाँ से अंजना जी? मैं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो? नहीं, मैं पहले मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करती थी, कोविड में मेरी जॉब चली गई, उसके बाद मैं अध्यात्म में ये सब बहुत कुछ जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे सीखती जा रही हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड, टैरो कंसल्टेंट, चार्म्स, अपने इंट्यूशन को इस तरह मैं लोगों में स्प्रेड करती आ रही हूँ। और सिर्फ यो सोशल मीडिया में पोस्टिंग करती हूँ, मेरे को कोई क्लाइंट नहीं मिलता। तो मेरा यही प्रश्न था, क्या मैं इसी को कंटिन्यू करूँ या मेंटल हेल्थ की कोई जॉब ढूंढूं? ओह ग्रेट। तो क्या आप संडे आ रही है? संडे मेरा अगर कोई और सेमिनार या वेबिनार में मैंने रजिस्टर नहीं किया तो जरूर आऊंगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको कभी डिवाइन कॉल आता है लाइट लैंग्वेज सीखने का तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं कभी। हाँ जरूर सीखूंगी। थैंक यू। और कोई थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? बस 2 लोगों के एक्सपीरियंस नहीं, और कोई? मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोग जिनका वीडियो ऑन है उनमें से कोई शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस? हाँ जी संजू जी, एक मिनट। हाँ संजू जी हैंड रेस कीजिए, यहाँ से नहीं दिख रही आपको, इतनी सारी लिस्ट है। यहाँ पे आपको हैंड रेस करना है। बोलिए पूर्णिमा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मेरे को आज जब से मैंने ज्वाइन किया मुझे बहुत हाई एनर्जी फील हो रही थी। तो आप जब बात कर रहे थे ना तभी मैं पता नहीं मुझे लग रहा था कि मैं ध्यान में जा रही हूँ। और फिर जब आपने ध्यान करवाया तब मैं ध्यान में गई और बस मुझे खाली एनर्जी फील हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि मैं एकदम वो जैसे गहरा ध्यान पे चले जाते हैं ना, तो फिर मुझे कुछ एकदम ब्राइट सा कुछ दिखा। फिर मेरे समझ में आया कि जैसे मंदिर है और उसमें मुझे
भगवान राम की मूर्ति जैसे समझ में आई, जस्ट एक झलक। और फिर मैं जस्ट अपने आप ही ध्यान, मतलब मेरा वो स्तर से मैं नीचे आ गई। इट वॉज जस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, आप कह सकते हो। फिर जैसे आपने कहा ना कि जो लोग ध्यान से निकल गए हैं, जैसे वो गहरे ध्यान से मैं अपने आप ही वापस आ गई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा और बहुत हाई एनर्जी आज महसूस हुई। मैं उससे भी ज्यादा बताऊं, आप गहरा फील कर रही है, इसको कहते हैं गहरा फील कर। हाँ, बहुत गहरा फील किया मैंने आज। मेरे को बहुत एनर्जी तो हाई ही होती है। क्योंकि मैंने ना आपको क्वेश्चन भी लिख के भेजा था जब मैंने ज्वाइन किया था, कि मैं ध्यान तो बहुत दिनों से कर रही हूँ मैम, लेकिन एसेंशन फील नहीं होता मुझे। उसका टेस्ट किया आज। हाँ, आज मैं, यू आर राइट, आज मैंने उसका टेस्ट फील किया। So basically actually light language is for that उठाओ, जो आप फील करें ना, लाइट लैंग्वेज उसी के लिए होती है। क्योंकि देखिए आज सब औरतों ने एक दूसरे से कनेक्ट किया अपने फीलिंग से, और वो सारा ऊपर आ गया था ना सबका। जब आप बता रहे थे ना मैम, आप अपनी मम्मी के बारे में और वो, तो मैं इतना कनेक्ट कर पा रही थी आपसे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आपके आंखों में आंसू आ रहे थे, उतने ही आंसू मेरे आंख से भी आ रहे थे। क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अपनी माँओं का सबका और अपनों का सबका एक ही हाल है। अपनी माँ, मतलब मैं आज अपनी माँ का दुख इतना महसूस कर पाई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। राइट, यस। शादी के बाद मैंने भी वो सारा एक्सपीरियंस किया, व्हाट शी हैव गॉन थ्रू एक्चुअली। बट वही है कि वो ब्रेक कौन करेगा और कब करेगा, वो मैंने जिम्मा उठाया। और वो जो जिम्मा उठाएंगे वो जरूर उस दिन डेट करने के लिए मेरे साथ आएंगे संडे को, मुझे पूरा विश्वास। हाई फाइव। चलिए, गो ऑन फास्ट। गीता अरोरा जी, आप सीख सकती है, जितने भी लोग लाइट लैंग्वेज सीख सकते हैं, यू कैन गेट एक्टिवेटेड। भाई डिवाइन पूरा दिल खोल के छप्पर फाड़ के दे रहा है, जिनको लेना है वो लीजिए। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद मी। मैंने मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर किया है। हाँ, मैं लेकिन मुझे आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछने हैं। आई विल कनेक्ट विथ यू। हाँ जी, नहीं, गीता राज जी ने लिख के भेजा, और आई थिंक 2 लोगों ने और लिख के भेजा है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल शेयर करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, फटाफट एक, आई थिंक 30 seconds फॉर संजू जी, 30 seconds फॉर गौरी। गो अहेड। ओके मैम, मैं जैसे ही आपका शुरू हुआ, मुझे किसी ने लिंक भेजा, नीलिमा जी ने, और मैंने इंस्टेंटली आपका ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही आपने मेडिटेशन शुरू करा दिया। लेकिन उसी बीच में मैं सेकंड्स के अंदर ही मेरे के माइंड में मेरे बहुत पेन हो रहा था, मुझे पूरी बॉडी में। मेरे यहाँ पे एकदम से ऐसे लगा जैसे मुझे लिक्विड जैसे कुछ तो हो रहा है, और हार्ट में एकदम धक 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 धक। तो उसके बाद में फिर आपके जो इंस्ट्रक्शंस चल रही थी, मैं उसी के साथ करती हुई फिर वापस आ गई। तो मुझे समझ में नहीं आया ये ब्रेन में, मतलब माइंड में क्या ऐसे लिक्विड जैसा एकदम पेन हो रहा था। केमिकल कॉम्बिनेशन बदल गया ना आज आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैम मेरी ना मेमोरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे याद नहीं रहता। अरे आपको पता है मेमोरी का प्रॉब्लम क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द लेडीज में ये इशू हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि हम इतने थक गए वो सारी चीजों से, गुजर गुजर के, सुन सुन के, देख देख के, सह सह के, कि हमें इंटरनली फीलिंग आती है क्यों मुझे याद रहता है, काश मुझे कुछ भी याद नहीं रहे, मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे इन लोगों का कुछ सुनना नहीं, मुझे कोई ताने सुनने नहीं है। उस चक्कर में एक्चुअली वी डू नॉट हैव दैट प्रैक्टिकल इश्यू ऑफ आवर ब्रेन। यस वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, आपको बताया, कुछ कुछ मिनट तक मुझे कुछ भी नहीं समझता था, और मैंने वो बीच में मैं इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस करके आई हूँ यहाँ तक, और मैं निकली हूँ। ये दैट इज द बिग मिरेकल एक्चुअली। पर मुझे अब पता है कि ये क्यों होते हैं सारे इश्यूज, और खैर ये तो हम उसी दिन हम डिस्कस करेंगे सारा, दिस इज नॉट द टाइम। ओके ओके गौरी। हाँ हेलो। हाँ जी मैम, जब मैं उतना कनेक्टेड नहीं थी लाइट लैंग्वेज से, और पहले जब आपने किया था तो भी नहीं थी। बट अभी जब कर रही थी ना, तो नहीं क्या
आप जो बोल रहे थे ना, तो उसके बाद मैंने क्या ध्यान में थी और बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रहे थे, मस्त वाइब्रेशन कंटिन्यू आ रहे थे, और फिर अचानक नहीं क्या मैं बोल रही थी आपके साथ मतलब जैसे कि और मैंने देखा है, फिर मैंने ट्राई करके भी देखा कि मैं खुद से मतलब बोल रही हूँ क्या, नहीं अपने आप ही होने के अलग से वाइब्रेशन आ रहा है, जिससे मुंह अलग से गले से निकल रहा है कुछ ऐसा। तो मैं मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रही है, तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। अरे प्रो बीच बीच में फर्स्ट मास्टर थे, फिर सेकंड मास्टर आए थे, फिर थर्ड भी थे शायद, कि पता नहीं, बट 2 मास्टर का था, तो वो जो बोल रहे थे ना, तो अलग से मैं रिप्लाई दे रही थी, ऐसा टाइप लग रहा था मुझे। ओके, तो ये डिटेल हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड के कोर्स में सुनेंगे सेशन में। ओके, क्योंकि अभी अभी काफी टाइम हो गया है। गीता चांदनी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? और यहाँ पे किसने लिख के भेजा है? प्रतिभा जी, मैम अपने लाइट लैंग्वेज में क्या है, मतलब क्या कहा? नहीं, देखिए वो आपके सोल को समझ में आता है। हाँ प्रतिभा जी, ये स्टार लैंग्वेज है, स्टार लैंग्वेज कह सकते हैं, लाइट लैंग्वेज कह सकते हैं। ओके, हाँ जी बोलिए, कहाँ गई लास्ट गीता चांदनी जी? सॉरी मैम। यस मैम, ऐसा लग रहा है आज आप माइंड रीडिंग कर रहे हैं। सच्ची ऐसा लग रहा है कि मैंने तो सिर्फ ना वॉइस से ना क्वेश्चन निकाले नहीं, क्योंकि आपने लास्ट सेशन में इतना कुछ मुझे बता दिया कि मुझे लगता है कि पूछने के लिए तब तो कुछ रहा नहीं था, पर आज मन में उथल पुथल हो रही थी, इसीलिए आपका सेशन ज्वाइन किया कि चलो अगर नंबर आ गया तो जरूर पूछूंगी। ज्यादा समय नहीं लूंगी, बट जो क्वेश्चन था उसका आप ऑटोमेटिकली आंसर दे रहे थे। क्लास में जो आपने अनाउंसमेंट किया, ऐसा लगा कि इट वाज द आंसर फॉर मी। जो आपने अपनी मदर का बताया, I can't explain you what you said, but the emotions still vibrating my body. I can't tell you. 2 सेशन से आपकी मेडिटेशन की पावर मैं बता देती हूँ। 2 सेशन से I am feeling like कि I am sleepy. I can't do this. I am sleepy. बट कोई एनर्जी उठ के बोलती है चल यार कर ले, एक बार तो देखते हैं। और आफ्टर जस्ट द 10 मिनट ऑफ द मेडिटेशन, आप जो स्टार्टिंग में 2 जो भी कराते हो, आई डोंट काउंट द मिनट्स, इतना इतना पावरफुल होता है कि अब मैं फुली एनर्जेटिक हूँ। आई एम डूइंग वर्क एट माय किचन। दैट इज व्हाई आई म्यूट माय, मैंने अपना स्टॉप द वीडियो कर दिया। इतनी एनर्जी है। बट जो भी आपने आज बोला है, ऐसा लगा कि 7 दिन तक जो क्वेश्चन मन में चल रहे थे ना आपसे पूछने के, वो सब आपने आंसर दे दिए हैं। हाँ जी, ये तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये मूवमेंट चलाना है मुझे, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि ये मेरे जिंदगी का मिशन है। पत्री सर ने मुझे कहा था कि बेटा तेरा रास्ता अलग है, सब कुछ तरीका अलग होगा, रास्ता अलग होगा, पर तुझे जो करना है उस पे चलती रहना, इस इधर उधर मत देखना, बस आगे बढ़ती रहना। और वो पहला कदम मैंने बढ़ाया, क्योंकि इस कदम के लिए पत्री सर ने मुझे कहा था लास्ट टाइम, मैंने जो बोला ना, पत्री सर ने कहा मुझे भूल जा, क्योंकि उनको लगा कि शायद अब नहीं, तो मतलब he wanted me to take this step that I have taken today, कि पहले तेरा मिशन पे काम कर, बाद में बात करेंगे, अब तब तक मुझसे बात भी ना करियो। मैम आपने जो बताया ना कि ना आपको मेडिटेशन से हटा दिया गया, लाइक मतलब यू गॉट द मैसेज, इट वाज हैपन विथ मी आल्सो। पर तब मुझे ना बहुत तो सारी है, बहुत सारी है, आप अकेली नहीं है। मैं तो बताती हूँ, कुछ कुछ ऐसे भी मास्टर्स मुझसे कनेक्ट हुए, वो बोल रहे मैडम मुझे ऐसा हो रहा है मैडम। मैंने कहा मैं समझ सकती हूँ, बट अब नाउ आई हैव आंसर, क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑन मी ना, मुझे भी तो कुछ मेरे पास चाहिए था देने के लिए ना, अच्छे से। नाउ आई एम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड एंड रेडी। इतना अच्छे तरीके से आप इतना अच्छे तरीके से बात करते हैं, एंड हाउ बोल्डली यू स्पीक ना, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब वी कांट फील, मतलब वी कांट फील बिफोर योर स्पीकिंग कि यू हैव गॉन थ्रू from the so much of things in your life, but hats off to you. You boldly encouraging us, you boldly hosting us. I'm really grateful to you. और उस दिन तो जब हम मिलेंगे डेट पे, तो बस उड़ाने वाले हैं, एक के बाद एक उड़ने वाली है बहुत सारी So चीजें। true, so true, ma'am, so true. बिल्कुल, Thank you मैं so तो गन much. के साथ रेडी रहने वाली हूँ। Definitely. Thank you so much, ma'am. ओके, तो बस वो जहां बनाना है एक ऐसी जगह जहाँ पे a woman can feel empowered, safe and highly protected। एक जगह होनी चाहिए हमें रिचार्ज करने के लिए। हम मोबाइल को तो रिचार्ज करते हैं, खुद को रिचार्ज। देखिए फीमेल की बात थोड़ी अलग होती है, दे नीड समथिंग डिफरेंट, दे नीड समथिंग डिफरेंट। जब माँ की, हम देवी माँ की आराधना करते हैं, उसकी गुणगान करते हैं, तो वो और उठती है, खड़ी होती है, राइट।
So we are going to do all the things. I think it's 6:05 now. आज काफी like extended, and thank you so much everyone. I'm so grateful that you are being here with me till now, and everyone who are serious, type D on 9529245516. Send your name and type D. सबको डिटेल होंगे, याद रखिए, भूलिए नहीं। 26 तारीख को संडे को मिलेंगे हम 4 घंटे के लिए मॉर्निंग में। ओके, 10 से 2। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।